honor the Holy Spirit in our midst. We honor you, we honor you, we honor you, Lord. We honor you, we honor you, we honor you, Lord. Let us give him all the honor. We honor you, we honor you, we honor you, Lord. Once more. We honor you, we हाथ उठा के honor you, we honor you, Lord. With our hands raised to heaven, we honor you, we honor you, we honor you, Lord. हम आदर देते, हम आदर देते, आदर देते तुझको प्रभु. हम आदर देते तुझको प्रभु. We honor you, we honor you, we honor you, we honor you, Lord. We honor you, we honor you, we honor you, Lord. This is what the Lord said. I am that I am, Yahweh the one, true living God. I am that I am, Yahweh the one, true living God. We honor you, we honor you, we honor you, Lord. We honor you, we honor you, we honor you, Lord. हिंदी में हम आदर देते तुझको प्रभु. Once more. हम आदर देते तुझको प्रभु. यहोवा कहता है, मैं जो हूँ वो हूँ, यहोवा है जीवित प्रभु. मैं जो हूँ वो हूँ, यहोवा है जीवित प्रभु. We honor you, we honor you, we honor you, Lord. We honor you, we honor you, we honor you, Lord. Oh, let's lift up our voices and thank him for his sweet presence. आइए अपनी आवाजों को ऊंचा उठाएंगे उस महान परमेश्वर के लिए. यावे, यहोवा, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम की हम स्तुति गाते हैं. हम कहते हैं जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि हमारा धन्यवाद. Oh, come on, church, lift your voices and thank him. He is worthy. We are alive this morning because of his faithfulness. Oh, let your mouth not cease to praise him. जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद. जीवन देने वाले प्रभु यीशु को
for a spotless bride. Oh, come on, lift up your voices and thank Him. Prepare me, Jesus, for your coming. I want to be the bride that's ready. Come on. अगर आप नहीं बोलेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे. If you don't speak out, the stones will cry out. Oh, let your roar be heard. Come on, Shalom, Grace Covenant Church. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, we thank you, Lord. यीशु ने कहा आराधना करो आत्मा और सच्चाई से. Jesus said, the Father is looking for worshippers who will worship in and in truth. Spirit and in truth. Are we ready to worship Him in spirit and in truth? You know, you don't have to be in your places. You want to dance, you can, I don't know, you can come on the side. You can just be free in the Spirit. Yes, Daddy, they can be free in the Spirit. Yes. Oh, come on. आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे. आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे. आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक
these may be new songs for you. We sing them in church. But the Holy Spirit is the same Holy Spirit. Yes. Amen. ये है ज़मीन, ये आसमां, तुम सा कोई कहाँ करते रहे इबादत तेरी, हम तेरी महिमा यहाँ। ये है ज़मीन, ये आसमां, तुम सा कोई कहाँ करते रहे इबादत तेरी, हम तेरी महिमा यहाँ।
song. He's our apostle. He's our spiritual dad. हमारे आत्मिक पिता है, हमारा आत्मिक पिता और अपोस्टल भी है हमारा. We honor Daddy Pindup and we honor Mummy Rita from the bottom of our heart. Really, we honor the anointing over their lives. हम सच में उनको सम्मान करते हैं, अपोस्टल और उनकी पत्नी को, और जो अभिषेक उनके जीवन में, उस अभिषेक को भी हम आदर करते हैं. I tell you, church, if our father has many rooms or many mansions, as Daddy was saying yesterday, our daddy's heart also has many rooms. जैसे कि अपोस्टल ने कहा कि है ना कि हमारा स्वर्ग के जो पिता परमेश्वर, उनके घर में बहुत सारा रूम है, उसी तरह हमारा आत्मिक पिता जो है, उनके घर में, उनके अंदर भी बहुत सारे लोगों के लिए और भी जगह है. He will adopt anyone. वो किसी को भी ले लेते, अपना लेते हैं. Can you witness with me or testify with me how many children of daddy and mommy over here? आप क्या मुझे गवाही दे सकते हैं कि जगह पे कितने सारे उनका आत्मिक संतान है इस जगह पे? If you can lift up your hand. केवल अपना हाथ खड़ा कर दीजिए. Look around next to you. आपके आसपास देखिए. There is a son and a daughter of daddy and mommy Pindup right here. इस जगह में हमारे अपोस्टल जी का जो कहता है संतान, आत्मिक संतान, इस जगह पे बेटा बेटी हैं. And on your spiritual birthday, daddy and mommy, we want to honor you and we want to thank the Lord for the anointing over your life. Because this is the harvest of souls that has come. और सच में कहता है आपके आत्मिक, उनका जो आत्मिक जन्मदिन है, उस आत्मिक जन्मदिन के सच में हम उनको बधाई देते हैं और सच में आप सम्मान करते हैं. ये सब कुछ जो है आपने रखा है, लाया है, आपके मेहनत ने रंग लाया है. We really want to honor on behalf of both Natasha and myself. We want to honor the leadership of this church, Grace Covenant Church. मैं और हम दोनों जो है कहता है कि मिलकर आपको हम सम्मान करते हैं, जगह पे जो लीडरशिप है उनको आदर करते हैं हम. Pastor Danny has been so good to us. I don't know if he's good to you, but he's good to us. और पास्टर डैनी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा कहता है कि अच्छा रहे. मुझे नहीं पता आपके विषय में, हमारे लिए अच्छा रहा. Rosie and Pastor Danny, they have looked after us so well. Presbyter, thank you so much for the good word that you have brought in. And Presbyter, I don't know your name, Mr. Funny Man. I salute you. You can speak English, Hindi, Arunachali, I think any language. It's the work of the Holy Spirit. I honor you. सभी को हम कहता सम्मान कर, जितने भी हमें इस जगह पे आत्मिक लीडर हैं. And all the pastors and leaders present here. और सभी जितने पास्टर्स और लीडर इस जगह पे हैं, I want to honor you and I want to bless you in Jesus' name. मैं आपको आदर करता हूँ और आपको आशीष करता हूँ यीशु के नाम से. Pastor Munna, I want to honor you. Thank you for the translation that you're doing. He was telling me my Hindi is not great, and I told him it's the anointing that will translate the language. मैं इनको कह रहा था कि मेरा हिंदी सही नहीं. उन्होंने कहा कि अभिषेक आपको मदद करेगा. Amen. Amen. So, as Daddy said, one reason we came to Shillong was to get an impartation of revival. हाँ, जिस तरह हमारे आत्मिक पिता ने आपको बताया कि जगह पे हम आए थे कि उस रिवाइवल के बारे में जानने के लिए और देखने के लिए जगह पे. It is our passion to see the revival of the Lord Jesus Christ come into our nation once again. ये हमारा एक चाहत है, हमारे लिए एक चाहत है कि हमारे देश में जो एक बार फिर से आत्मिक जागरण होने पाए. We heard about the revival that took place through Pandita Ramabai. हमने सुना था कि कहता है कि रिवाइवल आया था हमारे भारत वर्ष में, कहता पंडिता रामाबाई के द्वारा. In Maharashtra, in Pune, we went to Khedgaon and we traveled like almost whole day to just get to that church where she started the work of the Lord. और महाराष्ट्र में पुणे में हुआ था, और जहाँ पे उस जगह पे हम गए थे, उस जगह पे बहुत लंबा सफर तय करके कि जिस जगह पे वो कलीसिया शुरुआत किया, उस जगह पे हम देखने के लिए गए थे. And our desire was just to go and get into that room where Pandita Ramabai lived. हमारा चाहत ये था कि उस जगह में जाकर देखें कि पंडिता रामाबाई जहाँ पे है उनको देखने के लिए. And as we entered that room, there was such a heavy anointing that we just soaked into that anointing and took the impartation.
और जब उस जगह पे हम पहुंचे, हम जाकर देखे थे, इतना ज्यादा जोरदार अभिषेक उस जगह पे था और हमने भी उस अभिषेक को कहता कि महसूस किया अपने जीवन में। And we told the Lord, Lord, one day do it through us in Jesus' और name. हमने प्रभु को कहा, प्रभु एक दिन हमारे द्वारा भी करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। The same reason we came to Shillong. वही कारण था कि शिलोंग में आने का भी। We went to Malki Presbyterian Church because we saw that revival on BBC. क्योंकि बीबीसी न्यूज के द्वारा हमने मालकी में जो रिवाइवल हुआ था प्रेस्बिटेरियन चर्च में, उसको देखा, तभी हम उस जगह पे आने के लिए हमने मन को बनाया। We stood in that church again, we received the impartation. हम उस जगह पे गए थे ताकि देखने के लिए, ताकि उस रिवाइवल को अनुभव करने के लिए। Yesterday I entered Apostles' office. कल मैं अपोस्तल के ऑफिस में प्रवेश किया था। It was a day before yesterday. परसों रोज की बात है ये। The same anointing that was in Pandita Ramabai's room. जो अभिषेक जो है पंडिता रामाबाई के रूम के अंदर में था, The same anointing that was in Malki. और वही अभिषेक जो मालकी में था, That was the same anointing in Apostles' room. और मैंने वही अभिषेक जो अपोस्तल के रूम में ऑफिस में महसूस किया है। We are all about the anointing of the Holy Spirit. हम सब जो कहता है पवित्र आत्मा के अभिषेक में हैं। If we will not have the anointing of the Holy Spirit, we will live depressed, discouraged, rejected lives. अगर हमारे पास में पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं हुआ तो हमेशा हमारा जीवन जो निराशा, कोई आशा नहीं, हमेशा दुखी जीवन हम जिएंगे। The best Josh or the best energy that we can get is from the Holy Spirit. और सबसे बेहतरीन जोश या हौसला या ताकत जो आपको मिल सकता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा। When Daddy invited us to come, जिस समय हमारे आत्मिक पिता ने हमें कहता स्वागत किया है इस जगह पे आने के लिए, and Daddy told me you have to come and share from the Word of God. पिता ने हमसे कहा कि आप इस जगह पे आना है और प्रभु का वचन भी आपको प्रचार करना है। Instantly the Lord spoke to me. उसी द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात किया। And the Lord said, प्रभु ने कहा, I'm going to release an anointing in this place. प्रभु ने ये कहा कि मैं इस जगह पे अभिषेक को रिलीज करने वाला हूँ। You want to know what anointing is that? आप जानना चाहते हो अभिषेक कौन सा है? I didn't know the anointing. मुझे नहीं पता था कि अभिषेक। There are different facets of anointings of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा अलग अलग प्रकार का अभिषेक है। There is an anointing that all of us as pastors and servants of the Lord need. और ऐसा अभिषेक जो है हम पास्टर्स और परमेश्वर के जनों के जीवन में जरूरत है। We all want to live a victorious life, correct? क्योंकि हम सभी जो है कहता है विजयी जीवन जीना चाहते हैं। All of us want a ministry of healing, signs and wonders. क्योंकि हम सभी सेवक जो है परमेश्वर का सेवक लोग, हम चाहते हैं कि हमारा सेवकाई में जो है चिन्ह चमत्कार हो। We want that anytime we pray for somebody, the breakthrough happens, the blessings come. क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं जब किसी के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसी द्वारा उनका कहता है इसका रिजल्ट आना चाहिए, चमत्कार होना चाहिए। It is all correct as long as the soul is saved. ये तब तक सही नहीं होगा जब तक कि आत्मा ना बचाया जाए। Amen. Amen. If the soul is saved and the person who's saved through the healing and the miracle and turns to Jesus, then it is perfectly fine. अगर मान लीजिए वो इंसान जो है उद्धार पाता है, उसका आत्मा बचाया जाता है, तब जाकर कहते हैं उसके लिए वो चमत्कार होना, जो चमत्कार के लिए दुआ करते हैं छुटकारा के लिए, वो फायदेमंद होगा। As pastors we pray, Lord, empower us so that I'm mightily used for you. और पास्टर होने के नाते हम काफी बार हम दुआ करते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में और सामर्थ्य से भर दे ताकि हम और बेहतरीन इस्तेमाल होने पाए। But I asked the Lord, what is the anointing you want to release over your people? अब परमेश्वर से पूछिए कि परमेश्वर तू किस प्रकार का अभिषेक हमारे ऊपर में रिलीज करना चाहता है या देना चाहता है। And the Lord said, I'm going to release the anointing at Gethsemane. प्रभु ये कहता है कि प्रभु जो है आपके जीवन में जो है गेत्सेमनी जो स्थान है, उस स्थान में जिस प्रकार का अभिषेक था उस अभिषेक को आपको देने वाला है। When I heard Gethsemane, I was like, I'm not going to touch this place. और मैंने कहा जिस समय मैंने गेत्सेमनी के बारे में सुना, मैंने कहा कि नहीं प्रभु जगह पे मैं छूंगा नहीं। This is going to be a very difficult passage. I don't want to touch it, Lord. I'm honest with you.
मैंने कहा कि प्रभु मैं जानता हूँ बहुत ही कठिन स्थान है ये, इसको मैं छूना नहीं चाहता, But the Lord spoke to me very clearly. लेकिन प्रभु ने मुझे साफ साफ बातें किया. He said, the anointing of Gethsemane will release the power of prevailing prayer over the church. और प्रभु ने कहा कि गेत्सेमनी में जो कहता अभिषेक है, उस अभिषेक को कहता मैं रिलीज करने वाला हूँ, छोड़ने वाला हूँ. अभिषेक जो कहता है किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए, खड़ा होने के लिए, उस प्रकार का अभिषेक प्रभु रिलीज करेगा. Shall we pray? Let's look to the Lord for a moment. चलिए हम प्रार्थना करें और प्रभु की ओर ताके. Father, we thank you पिता हम धन्यवाद करते हैं for your word this evening. प्रभु आज के शाम के वचन के लिए. Lord, we believe प्रभु हम विश्वास करते that हैं you are going to speak to our spirit man. प्रभु तू हमसे बातें करेगा आत्मिक तौर में. That you will strengthen each one of us. प्रभु हम सबके अंदर में साहस को बढ़ेगा, That we will find renewed spirit. ताकि आत्मा में हम नया हो जाए, And that we will be strengthened ताकि हम और ज्यादा ताकत को हासिल करें, and made whole. ताकि हम पकड़े रहे तुझे, So that, Lord, we can run this race with endurance. ताकि प्रभु उस दौड़ को हम दौड़ कर पूरा कर सके, Looking unto Jesus, यीशु की ओर ताकते हुए, the author and perfecter of our faith. जो हमारा विश्वास का करता है. यीशु के नाम से. आमीन. Amen. Amen. You know, this morning, Presbyter Shabong, yes, I learnt your name, Evergreen Shabong. He told us that we have to be a united church. और जो कि प्रेस्बिटर के द्वारा बताया गया कि हम जो ऐसा कलीसिया होना चाहिए जो एकता. I take it from there. मैं उस जगह से लेता हूँ. God is saying, I'm looking for a united church. प्रभु ये कहता है कि मैं ऐसा कलीसिया को ढूंढता हूँ जिसमें जहाँ पे एकता हो. I'm looking for a prevailing church, a triumphant church, a victorious church. अब प्रभु कहता है मैं ऐसे कलीसिया को ढूंढता हूँ जो कहता है कि मध्यस्थी कर सके, प्रार्थना कर सके और जीतने वाला कलीसिया बने. And I'm looking for a glorious church. और प्रभु ये कहता है कि मैं महिमा से भरा हुआ कलीसिया को ढूंढता हूँ. So can we be a prevailing church? क्या हम ऐसा कलीसिया बन सकते हैं जो हम मध्यस्थी करें, हम कहता है कि खड़ा रहने के लिए. Grace Covenant Church, Shillong, this region has a legacy of prayer. मैं कहना चाहता हूँ, कहता है ग्रेस कवेनेंट चर्च या शिलोंग जो है, कहता है कि प्रार्थना का एक स्थान बना हुआ, प्रार्थना करने वाला स्थान है ये. And we will receive an anointing to prevail in prayer. और हमने उस अभिषेक को पाया है जो कि हम प्रार्थना कर सके और मध्यस्थी कर सके. Amen. आमीन. You know, this anointing was lost in the garden. अब जानते हैं ये अभिषेक जो कहता है कि एक गार्डन में आके गुम हो चुका था. In the Garden of Eden, as Father created Adam for his fellowship, and they were communing. What were they doing? They were praying at all times. अब जानते हैं वो जो कहता है ये जो अभिषेक जो है उस गार्डन में आके गुम हो चुका था, जिस गार्डन पे परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया है, और उस समय परमेश्वर ने उनसे बातचीत करता था, उनके साथ एक फेलोशिप था, उस फेलोशिप टूट चुका था. The great fall happened and we lost that. और जब कहता है कि आदम और हवा ने पाप किया और वो जो कहता है रिश्ता था, वो अभिषेक जो है टूट चुका था. For the same anointing, the Lord Jesus was striving in the Garden of Gethsemane. और वही अभिषेक जो है यीशु मसीह जो है गेत्सेमनी जो स्थान था, उस स्थान में प्रभु यीशु मसीह जो है लाने के लिए कोशिश किया है. Why do we need that anointing? और आपको और हमको उसी प्रकार का अभिषेक चाहिए. Anointing is being consecrated or being separated for God. वो अभिषेक जो है अपने आप को कहता है परमेश्वर के लिए बिल्कुल अलग कर देना. Anointing in the Old Testament included a ceremony when the person was anointing with the oil. वो अभिषेक जो कहता है, अगर पुराना नियम में देखा जाए, किसी भी व्यक्ति को अभिषेक किया जाता है, तेल के साथ अभिषेक करते हैं. This evening we will receive the anointing from Gethsemane. और आज के शाम को हम उस गेत्सेमनी जो स्थान है, उस स्थान से अभिषेक को प्राप्त करेंगे. This anointing is going to release the oil of healing over you. और ये अभिषेक जो है आपके जीवन में चंगाई का अभिषेक को लेकर आएगा. This anointing is going to release the oil of joy over you. ये अभिषेक जो है आपके अंदर में कहता है आनंद और खुशी का अभिषेक को ले आएगा. This is going to release oil of breakthrough. और आपके जीवन में एक छुटकारा का अभिषेक को ले आएगा. Many of you will go back from this place with a fresh vision. और आप इस जगह से जो लोग जाएंगे वापस, कहता है एक नया सोच के साथ, नया लक्ष्य के साथ आप जाओगे. Because the anointed high priest is here present with us. मैं कहना चाहता हूँ, कहता महायाजक का जो अभिषेक इस जगह पे हमारे बीच में है. You know what is going to happen?
आप जानते हैं क्या कुछ होने वाला है? You know, God is going to send His fire over us. परमेश्वर अपना अग्नि या आग को हमारे ऊपर छोड़ने वाला है। Because whenever there is oil जहाँ कहीं तेल होता है and there is passion for Jesus, और प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति उस जगह पे होता है, the fire of the Holy Spirit पवित्र comes. आत्मा का आग भी उतार आता है। Amen. आमेन। You know, we read it in the book of Acts, how the disciples were waiting for the Holy Spirit. और हम देखते हैं, अगर प्रेरितों की किताब में हम देखते हैं किस तरह यीशु मसीह के चेले जो है पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे वो। And the word says when the day of Pentecost had fully come. और बाइबल हमसे ये कहता है कि पंतकस के दिन में जो है पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। Why? Because they were waiting with one accord in one place. क्योंकि एक लोग एक स्थान में वो इंतजार कर रहे थे। And suddenly there was a sound from heaven. अचानक से कहता है कि आकाश में से एक आवाज सुनाई देने लगा। And a rushing mighty wind filled the whole house. और उस जगह में पूरी तरह से मैं उस घर रूम जो है पूरी तरह से भर चुका था। And then there appeared tongues of fire over people that came and sat on each of them. और उस जगह पे जितने लोग बैठे हुए थे सभी जो कहता है कि उनके ऊपर पवित्र आत्मा का आग आ पड़ा। 120 people were filled with the Holy उस Spirit. जगह पे 120 लोग थे और पवित्र आत्मा से भर गए थे। And they were speaking with other tongues. और उसके बाद वो जो है अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। You know, God was showing that there are going to be people who will have flames of fire falling on you. अब परमेश्वर ये कहना चाहता है कि ऐसे लोग होगा जिसके ऊपर में जो है पवित्र आत्मा के आग उतर आएगा। Are we ready? आप तैयार है उसके Are लिए? we ready for a fresh anointing? क्या आप तैयार है परमेश्वर की ओर से नया प्रकार का अभिषेक को पाने Fresh के लिए? refilling. कहता नया तर से परमेश्वर आपको भरेगा। I need an igniting from the Lord. हर परमेश्वर की ओर से सचमुच आपको भरा जाएगा। Amen. आमेन। Can we have someone on the keys, please? Yes, thanks, Josh. So the anointing at Gethsemane is precious. और हम जानते हैं गेत्सेमनी में जो अभिषेक है वो जो बहुत ज्यादा अनमोल है। And in the Garden of Gethsemane, Jesus is giving the church, his church, 3 mandates or 3 orders. और हम देखते हैं गेत्सेमनी में जो कहता है कि जो है ना जो स्थान है उस स्थान में जो यीशु मसीह कलीसिया के विषय में कहता है और उस जगह पे यीशु मसीह 3 बातों को हमें देता है। He's giving us the first mandate. और सबसे पहला जो कहता है यीशु हमें जो कहता है कि है ना मैंडेट आदेश हमें देता है। He's saying, let's enter Gethsemane together. वो कहता है कि चलो हम मिलकर कहता उस गेत्सेमनी में प्रवेश करें। Because you lost it in the Garden of Eden. क्योंकि ये जो अभिषेक जो है ईदन के बगीचा पे गुम हो चुका था। He's saying, let's now enter the Garden of Gethsemane together. और अभी यीशु ये कहता है चलो हम गेत्सेमनी के कहता स्थान में हम साथ में प्रवेश करें। Jesus modeled prayer all the time. और ये आप जानते हैं यीशु मसीह जो कहते हैं अच्छा नमूना है कि हमेशा वो प्रार्थना करता है। We heard even this afternoon, John 17, it was an Aaronic prayer that Jesus made to the Father. और आपने जैसे कि दोपहर में सुना था यूहन्ना 17 अध्याय में कि किस तरह से यीशु ने प्रार्थना किया ताकि एकता होने के लिए। Jesus prayed, Our Father in heaven, the और Lord's यीशु ने prayer. कहा हे पिता तू जो स्वर्ग में है। Here, Jesus in Gethsemane is modeling prayer for us. हम देखते हैं इस जगह पे यीशु मसीह जो एक उदाहरण बन के इस जगह पे खड़ा है। He could have gone by himself. वो अपने आप से भी जा सकता अकेला। Because the word tells us that he was accustomed to going to the Garden of Gethsemane. क्योंकि हमें प्रभु का वचन कहता है कि मानो उसके लिए कहता है कि एक रीति बन चुका था कि गेत्सेमनी में जाकर प्रार्थना करना। But this time he took Peter, James and John. इस बार जो कहता है कि पतरस यूहन्ना को साथ में ले चला। Do you want to be the Peter, James and John this evening? क्या आप चाहते हैं कि पतरस याकूब और यूहन्ना बनने के लिए? So you are going to see what Jesus was doing. आप देखोगे कि यीशु क्या कर रहा है। So the first mandate Jesus is giving to the church, सबसे पहला आदेश जो है यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए दिया है। the church is called to enter Gethsemane. कलीसिया को बुलाया गया है ताकि गेत्सेमनी में प्रवेश करने के लिए। Can we read from the text, the Holy Word, Bible, please? Matthew 26, verses 36 to 38. क्या हम परमेश्वर के वचन से हम पढ़ सकते हैं? मत्ती किताब 26 अध्याय का 36 से लेकर आगे हम पढ़ेंगे। The word says, then Jesus, you can follow in your Bibles, then Jesus came with them to a place called Gethsemane and said to the disciples, sit here while I go and pray over there.
और इस जगह पे हम देखते हैं यीशु अपने चेलों के साथ गतसेमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यही बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। And he took with him Peter and two sons of Zebedee, their James and John, and he began to be sorrowful and deeply distressed. और वो पतरस और जब्दी की दोनों पुत्रों को साथ लिए गया और उदास और व्याकुल होने लगा। Then he said to them, my soul is exceedingly sorrowful, even to death. Stay here and watch with me. तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, तुम यही ठहरो और मेरा साथ प्रार्थना करो। Today we will understand the journey through Gethsemane. और आज हम थोड़ा सा समझेंगे कहता ये यात्रा जो है गेत्सेमनी का जो यात्रा है। Just before the Garden of Gethsemane episode, the Lord's Supper happened. आप जानते हैं ये गेत्सेमनी का जो स्थान से पहले प्रभु भोज हुआ है। So this afternoon we had the Holy Communion. और आज दोपहर के समय हमने प्रभु भोज को पाया है। And the fivefold ministry is present in the church is in order. आप जानते हैं जब 5 पद का सेवकाई कलीसिया में है, कलीसिया आदर की योग्य होता है। So from the last supper, from the Holy Communion, they go into Gethsemane. आप जानते हैं कहता है इसका जो कि ये गेत्सेमनी के जो स्थान है उस स्थान से जो कहता है हम देखिए उससे पहले जो है प्रभु भोज हुआ है। Because he's telling the church Gethsemane is the only place of victory. और वो जो है कलीसिया से कहता है गेत्सेमनी वो स्थान है कहता विजय का स्थान कलीसिया के लिए। There is no shortcut for our victory. और आप विजयी होना चाहते हैं, जीत हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए किसी प्रकार का शॉर्टकट नहीं है। But Gethsemane, the word means the oil press. आप जानते हैं गेत्सेमनी का अर्थ जो कहता है कि तेल जो कहता है दबाए जाने वाला, वो निचोड़े जाने वाली जगह है ना, जहाँ पे निचोड़ा जाता है या दबाया जाता है। So he took his disciples there because he said there is no shortcut. और यीशु ने अपने चेलों को उस गेत्सेमनी ले गया और ये सभी ये दिखाने के लिए है कि ताकि विजय के लिए किसी प्रकार का शॉर्टकट नहीं है। Jesus was in agony. और यीशु जो बिल्कुल व्याकुल था And he was about to drink the cup. और यीशु जो कहता उस प्याला को पीने पर था। This was the Father's cup. ये जो कहता पिता का प्याला है। Cup of suffering was the Father's cup. क्योंकि ये कहता है ये प्याला जो है पिता का था, क्योंकि ये जो तकलीफ से भरा हुआ प्याला था। Because it was filled with everything that hell could contain. अब जानते हैं कहता वो चीज में हर चीज भरा हुआ था, जाकर मानो कि जैसा कि नरक में जो कुछ है। So a divine man with a seed of the divine with no sin in him. वो जो कहता अद्भुत परमेश्वर जिसमें किसी प्रकार का पाप नहीं था और ना पाप को जानता था, Was looking at a cup which was full of hell. अब जबकि यीशु ने उस प्याला को देखा, पिता का प्याला को देखा, उस प्याला जो मानो पूरी तरह से नरक भरा हुआ था। And Father is saying, drink it, my son. अब पिता जो अपने बेटा से कहता मेरे पुत्र इस प्याला को पी लो। This cup is full of rejection. ये प्याला जो मानो पूरा ठुकराया है, पूरी तरह से मानो को इसको ठुकरा दिया है। This cup is full of betrayal from your congregation. कहता ये प्याला जो मानो कहता है कि आपके भीड़ के द्वारा ठुकराया गया है। This cup is full of pain and everything that anybody and everybody has said badly about you. और ये प्याला जो उस सारी चीजों से भरा हुआ, जैसे कि मानो लोग आपके विषय में बहुत बुरा बोला है, बुरा बर्ताव किया आपके साथ में। You may have invested all your life to them. और आपका जीवन जो उसके लिए पूरी तरह से आपने झोंक दिया, दे दिया है। And Father is saying, my son, my daughter, drink this cup. और पिता जो है अभी ये कहता है मेरा बेटा है, मेरे बेटी इस प्याला को पी लो। And Father is telling Jesus in Gethsemane, drink this cup. और पिता परमेश्वर अपने पुत्र से ये कहता है कि गेत्सेमनी में ये प्याला पी लो। By modeling this or laying that pattern, Jesus is showing us that his followers must drink this cup. और यीशु मसीह जो एक उदाहरण बना और यीशु ये साबित करना ये कहना चाहता है कि उसके पीछे चलने वाले भी जो है इस तरह का प्याला को पीना होगा। Because in Matthew 20:23 he tells his disciples, you will indeed drink the cup that I drink. With the baptism I'm baptized, with you will be baptized too. और यीशु जो है अपने चेलाओं से कहता है, मत्ती किताब 20 अध्याय का 23वां वचन में कहता है, जो प्याला मैं पी रहा हूं उस प्याला को तुम भी पियोगे। Verse 39. और 29 में कहता है, He went a little farther 39 में कहता है, and fell on his face and prayed, saying, Oh my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless,
not as I will, but as you will. 26 और है ना 29-39 में ये कहता है कि कहता है हे पिता अगर हो सके तो पिता परमेश्वर ये प्याला मुझसे दूर रहे फिर भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं लेकिन जैसा तू चाहता है वैसे हो. Jesus was not asking the Father to remove the cup for his own sake. हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने ये नहीं कहा हे पिता परमेश्वर मेरे कारण जो मेरे लिए प्याला को मुझसे दूर कर, ऐसा नहीं कहा. Even before he was created to be sent or formed to be sent on this earth, he knew he was coming to die for us. और यीशु मसीह धरती पर आने से पहले ही इसको पता था कि संसार पे आना होगा और लोगों के लिए अपने जीवन को कुर्बान करना होगा. He was just telling the Father, if it is your will, I will drink the cup, but help me to endure this night. और मानो यीशु इस जगह पे ये कह रहा पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर अगर तेरी इच्छा के मुताबिक से ये प्याला मैं पीऊंगा फिर भी प्याला को पीने के लिए मुझे सहायता कर. If you can carry somebody else's fault अगर मान लीजिए आप किसी का गलतियों को अगर उठा लेते हैं आप and you carry it as a burden over your life, और आपके जीवन में उसके बोझ को आप उठाते हैं, then with nothing you have done wrong yourself. और मान लीजिए आपने अपने जीवन में कोई भी गलती नहीं किया है, And still, if you are carrying somebody else's fault, फिर भी अगर किसी और का गलती को अपने ऊपर इल्जाम को ले लिया आपने, what will you pray? आप क्या प्रार्थना करोगे आप? Lord, help me endure आप कहोगे this. प्रभु मुझे सहायता करना इस पीड़ा में. But if it's possible, please take this away from me. और आप ये कहोगे कि अगर हो सके तो कहता ये दर्द जो है ये मुझसे दूर रहे. Exactly, Jesus was praying this. और उसी तरह से यीशु ने भी प्रार्थना किया. To a man who knew no sin, our horrible disease, our death was put on him. और जो व्यक्ति पाप से अनजान था, बिल्कुल पाप को नहीं जानता, पाप नहीं किया, उसके ऊपर में हमारे सारे पापों को डाल दिया गया. 2 Corinthians 5:21 says, for he made him who knew no sin to be sin for us. दूसरा कोरिन्थी किताब 5 अध्याय का 21वां वचन कहता है उसको कहता है जिसको कोई पाप के बारे में कुछ नहीं जानता था उसके ऊपर में हम लोगों का पाप को डाल दिया. Why? That we can become the righteousness of God. किस लिए? कारण ये है कि ताकि आप और हम परमेश्वर का धर्मी जन कहलाए. When we stand before our congregations, we look perfect people. और जब हम कहते हैं अपने भीड़ के आगे विश्वासियों के आगे खड़े होते हैं मानो उनके आगे हम बिल्कुल धर्मी हैं. When Jesus stands before us, जब यीशु हमारे सामने खड़ा है we know what he's carried on his back. और हम जानते हैं वो अपने ऊपर क्या कुछ उठाया है. When you stand before your congregation, जब आप अपने विश्वासियों के आगे खड़े होते हैं and when you endure and drink the cup, आप जब कभी उस प्याला को आप पी लेते हैं, only you know and your Father knows and Jesus knows what you have endured at your क्योंकि back. केवल आपको पता होता और आपके परमेश्वर पिता को पता होता कि आपके जीवन में क्या कौन सा बोझ को आप उठाया हुआ है. So Jesus is having this conversation with his Father. If it is possible, take this cup. और जगह पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो परमेश्वर पिता से बातचीत कर रहा है कि हे पिता अगर हो सके ये प्याला मुझसे दूर रहे. But the Father is saying, drink this cup. लेकिन पिता ये कहता है कि हे मेरे पुत्र इस प्याला को पी ले. You know what he's saying in other words? अब जानते दूसरा शब्द में ये परमेश्वर ने क्या कहा? What the Father is saying in other words to Jesus? अब जानते दूसरा शब्द में पिता परमेश्वर ने यीशु से क्या कहा? He's saying, war, my son. कहता है मेरे पिता कहता है कि ये करना है तुझे. You have to fight. और तुम्हें लड़ना होगा. You have to war. तुम्हें लड़ना होगा. You have to overcome. और तुम्हें जीतना होगा. Because my church will prevail over the gates of Hades. क्योंकि मेरा कलीसिया जो है नरक का हर एक द्वार को तोड़ते हुए आगे निकलेगा. What does the word says in Matthew 16? I will build my church and the gates of Hades shall not prevail against it. मती किताब 16 अध्याय में ये बोला गया है कि मैं कहता इस चट्टान के ऊपर मैं अपना घर को बनाऊंगा, अपने कलीसिया को बनाऊंगा, नरक का कोई फाटक इसमें प्रवेश ना कर पाएगा. So if you have been through a pain or a suffering, अगर आप मान लीजिए दुख और तकलीफों से आप गुजर रहा है, it's your door to victory. मैं कहना चाहता हूँ मानो आप विजय के द्वार पर खड़े हैं. The Father has opened the gates of victory for you in मैं ये कहना Jesus' चाहता name. हूँ यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता आपके लिए विजय का द्वार खोल के रखा है. He took Jesus to the darkest, deepest place, परमेश्वर ने यीशु मसीह को जो एकदम गहरा अंधकार की ओर ले गया, so that one day we can walk in the darkest, deepest place and learn to war and win. ताकि आप और हम भी जो अंधकार के मार्ग से चलते हुए कहता उस लड़ाई को जीतेंगे और उजाला की ओर बढ़ेंगे. How would it look if your own pastor keeps crying all the time?
आपको कैसा लगेगा अगर मान लीजिए आपके बच्चे हमेशा आपके आगे रोते रहते हैं? You won't like it. आपको क्या अच्छा लगेगा? Apostle is rejoicing at all times. आप देखोगे कि आपका अपोस्तल जो हमेशा आनंदित है, He's laying a pattern for us. और उन्हें हमारे लिए मानो कि एक प्रकार का रखा है, तरीका रखा है, That we have to rejoice in every circumstance. वो हमें सिखाते हैं कि ताकि हर एक परिस्थिति में हमें आनंदित रहना We है, have to be victorious in every circumstance. क्योंकि हर एक परिस्थिति में हमें विजयी होना होगा। Amen. आमेन। So Jesus taught us to war in Gethsemane. और यीशु मसीह ने उस गेत्सेमनी में एक चीज को सिखाया, वो लड़ाई को लड़ना है, Because Jesus conquered sin in Gethsemane. क्योंकि यीशु मसीह जो है गेत्सेमनी में पाप को जीत लिया है। There is an anointing at Gethsemane. और उस गेत्सेमनी में एक प्रकार का अभिषेक है। The Bible tells us to partner with our hardships. और बाइबल हमसे ये कहता है कि एक प्रकार का दोस्ती होना चाहिए हमारे कठिनताओं के समय में भी। There is a partnership that God is seeking with us. और परमेश्वर ऐसा दोस्ती चाहता है परमेश्वर के साथ, Because in that deepest, darkest place, you will have your God encounter. क्योंकि आपके जीवन का जो कठिन समय, अंधकार का समय आपके जीवन में, उस समय में परमेश्वर आपके साथ है। If you have been a man or a woman of God serving the Lord for many, many years, अगर आप परमेश्वर का कहता जन है, आप काफी सालों से आप प्रभु को सेवा कर रहा है, and you have gone through a lot of betrayal and rejection, और आपके जीवन में बहुत सारा तकलीफ आया है, आपको बहुत सारे लोगों ने आपको ठुकरा दिया है, इनकार कर दिया है, can I give you a good news? क्या मैं आपको शुभ संदेश दे सकता हूँ? It is all orchestrated by Jesus. वो सब यीशु मसीह ने आपके लिए तैयार किया है। Your biggest enemy right now, और इस समय जो आपका सबसे बड़ा जो दुश्मन है, or your biggest betrayer right now, और ये आपका सबसे बड़ा धोखा जो आपका है, has been planted by the Lord. आप जानते हैं कि परमेश्वर के द्वारा ही कहता है उसको रखा गया है, Because in the presence of your enemy, क्योंकि आपका जो है दुश्मन के सामने में God is going to lay a banquet before you. परमेश्वर आपके लिए कहते मेज को तैयार And करेगा। that is a banquet of victory, my आप friends. जान लिए कि परमेश्वर आपके लिए क्या विजय का एक स्थान को तैयार किया है। That is a banquet of your own healing. आप जानते हैं कि आपकी वो जो है आपके लिए चंगाई हो सकता है, So your suffering और आपका तकलीफ जो है, is because Jesus went through that. क्योंकि यीशु मसीह उस दौर से गुजर चुका है। And Apostle told us that as Apostle Paul says, follow me even as I follow Christ. जैसे अपोस्तल ने हमें कहा कि जैसा अपोस्तल पौलुस ये कहता है कि मेरे पीछे हो लो जैसे मैं यीशु मसीह के पीछे चला हूँ। We have been in ministry 21 years. अभी हम सेवकाई में 21 साल से हैं, And I tell you, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ every week हर हफ्ता को there is a problem. कोई ना कोई समस्या आता है, For some of you, every day there could be a problem. और शायद आप में से किसी के लिए हर रोज कुछ ना कुछ समस्या होगा। The problems will never decrease. कहता आपका समस्या जो कभी भी आप देखते नहीं कि कम होते हुए है, But the problems are going to increase. समस्या बढ़ता जाता है, Because God is saying, the bigger the level, the bigger the devil. क्योंकि जितना ही कहता आपका बड़ा समस्या होगा उतना ही बड़ा कहता है कि आपका विजय भी होगा। You know what God tells us? आप जानते हैं प्रभु क्या कहता है? If you have been through the deepest dungeon, अगर मान लीजिए सबसे गहराई में आप चला गया है, it is because I have the highest anointing for you. आप जान लीजिए कि परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ा अभिषेक रखा आपके जीवन के लिए। Do you want to know what is the highest anointing? आप जानते हैं कि वो सबसे बड़ा अभिषेक क्या है? It is the high priestly anointing. आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको जो याजक का अभिषेक The रखा है, anointing that Jesus carries on him. यीशु मसीह का अभिषेक जो है आपके ऊपर में है। To pray at all times. हर समय में आप प्रार्थना करना है, To intercede at all times. हर समय जो मध्यस्थी की प्रार्थना करना है, To know the mind of his Father. ताकि परमेश्वर पिता का मन को जाने, To commune with him at all times. ताकि उसके साथ आप संगति करें हर समय। And what he sees on heaven, we do it on earth. जो कुछ वो स्वर्ग में देखता है ताकि इस धरती पर हम कर सके, That is the high priestly anointing. वो जो है कहता याजक का अभिषेक है। And I am not giving up. मैं रुक नहीं गया, I want to tell you, I'm not giving up. मैंने छोड़ नहीं दिया, रुक नहीं गया। And I want to encourage you, don't give up, मैं आपसे friends. भी आपको उत्साह देना चाहता हूं, आप रुकना नहीं, Don't give थकना up. नहीं।
रुक नहीं जाना। the bigger the suffering, जितना बड़ा तकलीफ होगा the bigger the rejection, और जितना आपको ठुकराया जाएगा, God is releasing the high priestly anointing over you. परमेश्वर आपके जीवन में कहता है याजक का, महायाजक का अभिषेक को रिलीज I'm करेगा। so desperate for the high priestly anointing. इसी वजह से आपके अंदर में एक चाहत होना होगा कि अभिषेक जो कहता है महायाजक का अभिषेक आपके जीवन में आए। Lord, the devil, the enemy comes against me. कोई फर्क नहीं पड़ता दुष्ट आत्मा शैतान आपके विरोध में कैसा आता है, How many number of people may stand against you? कितने सारे लोग आपके विरोध में खड़ा होगा। I stand and I remind myself. मैं खड़ा होऊंगा और मैं अपने आप को याद दिलाऊंगा। We are women pastors leading the church. हम कहता है स्त्रियां है जो कलीसिया को हम लीड करते हैं। We don't have a male pastor yet. हमारे पास में कोई कहता है पुरुष पास्टर नहीं है। And God tells us, और परमेश्वर हमसे कहता है with Jesus, यीशु you are a kingdom force. आप राज्य के लिए एक फोर्स हो। है ना, कहता है एक प्रकार का कहता है कि आप कहता है कि फोर्स से ताकत हो। Isn't that his name? उसका वो नाम नहीं है Emmanuel. इमानुएल। God with us. इमानुएल का अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ हैं। If we as women can stand with Emmanuel, or Emmanuel can stand with us, अगर हम स्त्रियां होके हम कहता है कि इमानुएल के साथ खड़ा है और इमानुएल हमारे साथ खड़ा है। so what about you, men of God? आप सारे परमेश्वर के जन जो जितने पुरुष हैं आपके विषय में क्या है? You are not alone. आप अकेला नहीं हो, With Jesus, यीशु के साथ हो, with the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के साथ हो, with the Father, पिता परमेश्वर के you साथ। are a kingdom force. अब इस बात को जान लो कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए एक You ताकत are a हो। mighty force. आप कहता है एक I महाशक्ति tell हो। you, no weapon formed against you shall prosper. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कोई ताकत आपके सामने आकर खड़ा नहीं हो Every पाएगा। tongue that rises against you, हर एक जो कहता है जीव आपके विरोध में खड़ा होता है, nobody else will condemn it. कोई आपको रोक नहीं सकता। You will condemn it. आप उसको कहता है गिराओगे। You open your mouth and break the accusation in Jesus' name. आप अपने मुंह खोलकर यीशु मसीह के नाम से जितने For भी you लोग are विरोधी है the उसको गिरा दो। righteousness of God, His heritage. आप कहता उस प्रतिज्ञा को लेना है, आप विश्वास के साथ जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपके लिए किया है। You know, we are daddy's daughters. आप जो है परमेश्वर के संतानें हो। Probably we out of all of you, we know him, you know, most recently. सबसे ज्यादा कम समय हम इनको जानते हैं. But because he is now a spiritual dad, हाँ, अभी जबकि हमारे अपोस्तल जो हमारा आत्मिक पिता है and we are his spiritual daughters, और हम उनका आत्मिक बेटियां है, I went in his office. मैं उनके ऑफिस में गया, I freshened up a bit. मैं उनके ऑफिस में गया And without his permission, और बिना उनके इजाजत से from his tissue box, कहता उसका जो टिश्यू बॉक्स है उनका, I took 2 tissues. मैं कुछ कहता टिश्यू पेपर को लिया है। I'm confessing my sin. मैं अभी अंगीकार कर रहा हूँ। But this is what God expects from all of us. यही जो परमेश्वर हम सबसे उम्मीद करता है, That when we are spiritual children of His, जब हम उसके आत्मिक संतानें हैं, as sons and daughters, परमेश्वर का संतानें हैं, we go access the Father of every blessing. और जो कुछ पिता का है हम उसको लेते हैं। Nobody can stop us. कोई हमें रोक नहीं सकता। We have every spiritual blessing, as the book of Ephesians इसी कारण says. कहता है कि जो कुछ भी आत्मिक आशीष हमारे लिए लिखा वो हमारा है। You know, the spiritual blessings are more powerful than the material blessings. आप जानते हैं आत्मिक आशीष जो ज्यादा ताकतवर है, जो कि शारीरिक कहता है If the ब्लेसिंग्स spiritual है। blessings are there, you will rock the world around you. आप जानते हैं जबकि आपके पास में कहता आत्मिक आशीष होगा तो आप हमेशा कहता है कि एक ताकतवर की तरह The होगा। material blessings, God will say, I don't know you. और आपके पास केवल कहता है संसारिक धन संपत्ति होगा, प्रभु आप कहेंगे मुझे नहीं पता आपको, मैं नहीं जानता आपको। Don't wait for your breakthrough to become famous. तो कभी भी आप कहता है इंतजार मत करना आपका छुटकारा जो कहता है आपके लिए बहुत बड़ा इनाम लेके आए। For His word says, well done, good and faithful servant, not well done, good and famous servant. परमेश्वर का वचन ये कहता है कि धन्यवाद हो विश्वास योग्य दास, ये नहीं कहता है कि नामी और प्रचार नामी सेवक। Are you good and faithful servant? क्या आप विश्वास योग्य दास है? So the oil at Gethsemane is so important. तो मैं ये कहना चाहता हूँ गेत्सेमनी में जो तेल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Can you lift up your hands and thank the Lord for your enemies? आप अपने हाथ उठाकर आपका विरोधी के लिए प्रभु Can को you धन्यवाद bless the कीजिए। Lord for all the enemies that He planted around you? जितना भी विरोधी आपके आसपास खड़ा है, चारों ओर आपको घेर करके रखा All है, those who hate you. जितने लोग आपको नफरत करते हैं,
all those who have rejected you, जितने लोगों ने आपको ठुकराया है all the suffering that they gave you. और जितने इसके तहत दुख तकलीफ आपको मिला है, Remind yourself, it's the high priestly anointing I'm going to get this evening. अपने आप को कही, अपने आप को याद दिलाए कि महायाजक का अभिषेक मुझे मिलने वाला है। Amen. आमेन। It's the dark night of soul, as one of the authors says. कहता जिसकी अंधकार से भरा हुआ, कहता किसी भी इंसान के लिए अंधकार से भरा हुआ स्थान होगा। But God is saying to us, लेकिन प्रभु हमसे कहता है at the end of the dark night of soul, कहता किसी भी इंसान के लिए मान लीजिए एक अंधकार से भरा हुआ स्थान होगा, comes the morning. उसके अंधकार के बाद भी उजाला आता है। It is going to end. अब जानते हैं कि अंधकार का अंत होगा। When you go back home from this convention, from this conference, और इस कॉन्फ्रेंस से जब वापस अपने घर जाओगे आप, you will go back celebrating the great faithfulness of God. अब जाकर आनंदित करोगे, आप मगन होगे कि परमेश्वर के विश्वास योग्यता के लिए। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। You know, some of us need to bury our dark nights. अब जानते हैं कि हमें से बहुत सारा लोग जो अंधकार को दफनाने का समय आ गया है। When we see people who reject us in front of us now, और माने उन लोगों को जो हम देखते हैं जिन्होंने हमें ठुकराया होगा, in my spirit I'm dancing. हमें अपने आत्मा में मानो कि मैं नाच In रहा my हूँ, spirit I'm jumping. मेरे आत्मा में जैसे कि मानो कि मैं I नाचता हूँ, start rejoicing in the Lord मैं प्रभु में आनंदित होने लगता हूँ, because I know क्योंकि मैं जानता हूँ I have been anointed by the Lord. मैं प्रभु के द्वारा The Lord अभिषेक has किया गया हूँ। anointed me प्रभु ने मुझे to अभिषेक share किया the है, good news, प्रभु to ने set the captives free. इसलिए अभिषेक किया ताकि बंदियों को This is आजाद the करने के लिए। anointing. ये अभिषेक है, God wants to release over His church. ये अभिषेक प्रभु आपके जीवन में छोड़ना चाहता है। Amen. आमेन। So there's a partnership. Number 2, the God is looking for a partnership with us. दूसरा पॉइंट ये है कि परमेश्वर जो कहता है पार्टनरशिप चाहता है, किसी का साथ चाहता है। Matthew 26 verses 39 onwards we read. मत्ती का 26 अध्याय का जो 39 से हमने पढ़ा है, Jesus went a little further and fell on his face and prayed, "Oh my Father, take this cup." यीशु मसीह परमेश्वर के आगे गया और ये कहा कि पिता अगर हो सके ये प्याला मुझसे दूर हो, Nevertheless, not my will, your will be done. फिर भी जैसा मैं चाहता वैसा नहीं, लेकिन तेरा इच्छा पूरा हो। Then he came to the disciples and found them sleeping and said to Peter, "What? Could you not watch with me for an hour?" जिसके बाद यीशु जो अपने चेलाओं के पास आता, वो देखता कि वो सोए हुए, वो कहता कि अब तो क्या कुछ समय के लिए तू मेरे साथ जाग नहीं पाया। And he says, "Watch and pray, और उसने अपने चेलाओं से कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करो, lest you enter temptation. ताकि ऐसा ना हो कि तुम परीक्षाओं में पड़ो। The spirit indeed is willing, but the flesh is weak." आत्मा तैयार है लेकिन कहता शरीर कमजोर है। What was he asking for prayer for himself? क्या यीशु मसीह अपने लिए प्रार्थना करने के लिए बोला उनको? No. नहीं। He was saying, "You need prayer." और यीशु ने कहा कि तुम्हें प्रार्थना चाहिए, Because after Gethsemane, we are going to Calvary. क्योंकि गेत्सेमनी के बाद यीशु जो कैलवरी पे जाने वाला है। We had the communion. और जैसे कि आज दोपहर में हमने प्रभु भोज को पाया है, We have entered Gethsemane. हमने गेत्सेमनी में प्रवेश किया, We're going to Calvary. कहता क्रूस की ओर जाएंगे। And when we enter Calvary, it gets hard. जबकि कैलवरी की ओर जाएंगे और ज्यादा कठिन है वो, Because everything carnal in us, जो कुछ जो हमारा शारीरिक है, everything that troubles us, जो कुछ हमें तकलीफ देता है, every mental problem, हर एक कहता है कि दिमागी समस्या, every trouble that the enemy creates every day for us, हर एक समस्या जो शैतान हमारे लिए तैयार करके रखा है, Jesus is saying, put it to death. यीशु ये कहता है कि उसे क्रूस पर, कहता है क्रूस पर चढ़ा दो। You have to go to Calvary now. आपको जो कहता है कैलवरी पे चढ़ाना होगा। So he's saying, watch and pray so you don't enter into temptation. यीशु ने अपने चेलाओं से कहा कि जागते रहो, प्रार्थना करो, ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में पड़ो। He was warring on our behalf. वो कहता हमारे ओर से होकर कहता है, He's fighting on our behalf. वो हमारे ओर से लड़ता है। God was showing me this vision. परमेश्वर ने मुझे ये दर्शन को दिया है। I was asking the Lord, why did you go back and forth to your disciples? अब मैंने बोला कि प्रभु क्यों तू कहता अपने चेलाओं के पास गया, फिर वापस आया, फिर गया, क्या कारण था? One time only he could have just burned them alive. तो केवल एक बार जाता काफी था। He could have done anything, call a legion of angels. वो कुछ भी कर सकता है, कहता है स्वर्गीय दूतों को इकट्ठा बुला सकता है। He did this for a reason. और उसने लेकिन जानबूझकर ये किया है। He was agonizing for us. क्यों? वो जो हमारे लिए कहता व्याकुल था। He was praying with
with a lot of contention inside, like warring conflict inside. और यीशु मसीह जो हमारे लिए क्या था, मध्यस्थी कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, हमारे बारे में व्याकुल था वो। Jesus was Son of Man and Son of God. इस बात को जानिए कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और इंसान का भी पुत्र है। So why back and forth, back and forth? इसी कारण अब मैं सोचा कि क्यों कभी आगे कभी पीछे। So as Son of Man, he goes to the disciples. परमेश्वर का पुत्र जो है जाता है। Why? क्यों? Because he empathizes with our weaknesses. वो हमारे कमजोरियों को दर्शाता है। He goes to the disciples and he says, watch and pray. वो अपने चेलाओं के पास जाता और कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करो। Then he goes back on that little stone, could be. और उसके बाद फिर से पीछे की ओर आता, मानो कोई छोटा सा पत्थर हो। And he goes before the Father as Son of God. और फिर से परमेश्वर पिता के आगे जाकर कहता है कि परमेश्वर पुत्र के आगे If it जाता is है possible, pass this cup. और वे कहता है पिता अगर हो सके ये प्याला मुझसे दूर रहे, Yet not my will, yours. फिर भी be done. जैसा मैं चाहता वैसा नहीं प्रभु, बल्कि तेरी इच्छा। Then he rises again. और फिर वो खड़ा होता है Because they are all sleeping. क्योंकि वो सो नहीं पा रहा। When we go through problems, difficulties, situations, we start slumber, sleeping. और जब सो नहीं पाया क्योंकि ऐसे था क्योंकि वो बहुत ज्यादा समस्याओं की ओर से आता हो, कभी हिल जाते डुल जाता We है। have all these things. What is the point of fighting anymore? Jesus is not listening to me. काफी बार जब कि हम समस्याओं से गुजरते हैं, हमें ऐसा लगता है कि क्या फायदा है कि प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह हमको सुन नहीं रहा वो। So next time you go through your weakness, जब अगले बार अपने समस्याओं के ओर से आप जाओगे, you go through distress and depression and pain and rejection. जिस समय कहता है कि दुख कहता है कि तकलीफों से आप गुजरोगे, Read this episode. ये वचन को पढ़ना, Because Son of God is going to intercede for you. क्योंकि परमेश्वर का बेटा जो आपके लिए प्रार्थना Son करेगा of will come to you. और परमेश्वर का And he'll पुत्र say, आपके "Watch पास and आएगा। pray." वो आपको खड़ा वो कहता है कि Then Son जागते of रहो, God will प्रार्थना करो। again intercede for you. वो परमेश्वर का पुत्र आपके लिए प्रार्थना Then करता Son है। of Man will come to you, परमेश्वर का पुत्र आपके पास आता है, empathizing with your weakness, आपके कमजोरी के साथ में आपको and आता है say, वो watch and pray. वो आपको हौसला देता है, कहता है कि जागते रहो, प्रार्थना करो। Because if you will not pray, you will not win. अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे आप कभी भी जीत नहीं पाओगे। आप Revelation 3:21, the word says, to whom who overcomes, I will grant to sit with me on my throne. आप जानते हैं गलतियां किताब 3:21 में कहता है, As I also overcame and sat down with my Father. जैसे मैं on his अपने throne. परमेश्वर पिता के साथ जाकर बैठा है। Do you want to sit next to Papa's throne? क्या आप कहता है प्रकाशित वाक्य में क्या 3:21 में क्या आप परमेश्वर का सिंहासन के पास में जाके बैठना चाहते हो? Everybody wants the prime seat. Everybody wants to sit next to the Father. हर एक के अंदर में चाहत होगा कि परमेश्वर पिता के करीब बैठे। We have to learn to overcome. इसी कारण हमें कहता है जीत कर आगे बढ़ना होगा। Amen. आमेन। The Son of God walks back and surrenders. और परमेश्वर का पुत्र जो कहता है कि पीछे होकर अपने आप को समर्पित किया है In obedience, और आज्ञाकारी रहा, obedient to the point of death. इतना आज्ञाकारी हुआ कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु तक को सह लिया। And then the word says in Luke 22:43 that an angel came from heaven strengthening him. और लूका किताब 22:43 में कहता है कि स्वर्गीय दूत आकर उनको ताकत देने लगा। And being in agony, he prayed even more earnestly. और जितना कहता कि व्याकुल था और ज्यादा वो प्रार्थना करने लगा। Then his sweat became like great drops of blood falling down to the और ground. उसके कहता होगा पसीना जो है मानो के लहू में परिवर्तन होकर टपकने लगा। You know, Gethsemane और गेत्सेमनी जो है defines your life. आपका आपको जीवन को दर्शाता है। If you have never been to Gethsemane, अगर आपके जीवन में कभी भी आप गेत्सेमनी के होड़ के नहीं आप गुजरा नहीं है, this evening get into Gethsemane. मैं आज के सामने आपसे कहना चाहता हूँ चलिए हम उस गेत्सेमनी में प्रवेश करें। If you enter Gethsemane, अगर आप गेत्सेमनी में प्रवेश करते हैं you will encounter Jesus as your king. और उस जगह पे आप यीशु मसीह को पाएंगे आपके राजा के रूप में। I believe today, this evening, some of you will have visions of Jesus. और मैं विश्वास करता हूँ आज के शाम को आप में से कुछ लोगों को एक दर्शन मिलेगा You will see the incarnated Jesus before you. और आप देखोगे कि यीशु मसीह को जो देख पाओगे आपके आगे में। Some of you will experience fire falling on your back. और आप में से कुछ लोग जो कहते मानो कहता आग जो है आपके पीछे की ओर गिरा है। You will experience healing and deliverance.
और आप में से कुछ लोग जो है चंगाई को, छुटकारा को, है ना, आप अनुभव करोगे। I saw some of you in the spirit and the fire fell on you. मैं आत्मा में देखता हूँ कि आप में से कुछ लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा जो है आ चुका है। The guy, the Punjabi guy who was worshipping in the center, Sudhir, I saw fire falling on his back. मैं जो जगह पे सुधीर बैठा है कि आपके अंदर मैं देखता हूँ कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरा है। God is going to marvelously touch you. परमेश्वर आपको स्पर्श करे। The Calcutta pastor. और कलकत्ता का जो पास्टर है, Calcutta pastor and his wife, God is going to mightily touch you this evening. और कलकत्ता का जो पास्टर है, परमेश्वर आपको और आपको पत्नी को जो बहुत अद्भुत तरीका से इस्तेमाल करेगा, छुएगा। You are in Gethsemane right now. क्योंकि आप इस समय गethsemane में हो। And God is going to release his oil over you. परमेश्वर आपके ऊपर में अपना अभिषेक का तेल रिलीज करने पे है। You will go back so oily from this place. और इस जगह से आप जाओगे पूरी तरह से अभिषेक से भर कर जाओगे आप। That your congregation is going to touch you and be healed. और जब अपने लोगों के लिए आप प्रार्थना करोगे, लोग चंगाई को प्राप्त करेगा। God is going to do mighty things in our midst. परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत काम करने वाला है। I want to give some time to prayer. इस समय मैं कुछ समय देना चाहता हूँ ताकि हम प्रार्थना करें। Because we are in the place of revival. क्योंकि हम ऐसे स्थान में जहाँ पे आत्मिक जागरण है। We are not here just to enjoy our fellowship with each other. केवल इस जगह पे हम आपस में एक आनंद बनाने के लिए नहीं We है। have come here to be changed. इस जगह पे हम इसलिए आए ताकि हम बदले। We have come here to be renewed. हम इस जगह पे आए ताकि हम बदले। So when you go back, your family, your congregation says a new person has just entered into the house. ताकि जब अपने घर में जाओगे, आपके विश्वासियों के बीच में जाओगे, वो के पाए कि हाँ, नया इंसान बन के आ गया है। Your congregation will say they were living without Jesus and suddenly they will see Jesus walking back with you. और आप देखोगे कि जो आपका विश्वासी ऐसा कहने लगे कि हाँ, यीशु मसीह आपके साथ में चल रहा है। Jesus was agonizing. और यीशु मसीह जो है हमारे लिए व्याकुल है। And Jesus is stirring the church. Agonize with me, no problem. और उस व्याकुलता में यीशु कहता है कि मेरे लिए कहता है खड़ा रहो, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करो। He's saying when you agonize, we contend together and we strain and zeal together to have the victory. है ना, कहता है कि हम प्रभु ये चाहता है कि ताकि हम जो है कहता है कि मध्यस्थी में होकर प्रार्थना कर प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलकर उस विजय में हम प्रवेश करें। In the book of Colossians 1:29, the word says, to this end, the apostle Paul says, I also labor, striving. और कोलोसी की किताब 1:29 में कहता है कि पौलुस ये कहता है कि मैं इतना ज्यादा परिश्रम करता हूँ, इतना ज्यादा उसमें मेहनत कर रहा हूँ। Striving, मेहनत करते हैं आप, है ना, आप बहुत मेहनत करते हैं। When you strive, you agonize with Jesus. आप जब मेहनत करते हैं तो आप प्रभु के साथ में होकर करते हैं। If your shoes get broken or your feet get bruised, you're agonizing. जैसे कि मान लीजिए आपका जूता टूट जाता है तो आप क्या करते हैं? आप मेहनत करते हैं। I honor the ground workers. मैं सम्मान करता हूँ जितने भी कहता है ना ग्राउंड वर्कर है, काम करते हैं। I have an air-conditioned car and an air-conditioned home and an air-conditioned office. But truly, I honor and salute everybody who's a ground worker. मैं सभी को मैं कहता है कि धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि जितने लोग ने मेहनत किया है, काम किया है। You will be closer to the throne of God, आप closer than us. भी जो है परमेश्वर के सिंहासन के और करीब हो सकता है। Laborers are called to strive. कहता जो लोग कहता है कि हाँ परमेश्वर के राज्य में बुलाया गया, उसको बुलाया गया तो मेहनत करने के लिए। If God has called you, परमेश्वर ने अगर आपको बुलाया है, you're elected and chosen by God. परमेश्वर के द्वारा आपको चुना गया है। It's not a small anointing or a calling. और ये बुलावट जो कहता छोटा मोटा अभिषेक नहीं है, It's a big calling over your life. ये आपके जीवन बहुत बड़ा बुलावट है। And you need to strive. आपको मेहनत करना होगा। Amen. आमीन। Jacob was striving. Jacob wrestled. We read in the book of Genesis. और उत्पत्ति किताब में पढ़ा है कि याकूब ने किस तरह से कहता स्वर्गीय दूतों के साथ वो लड़ा था। It took him 21 years to learn that lesson. कहता उसको 21 साल लगा शिक्षा को समझने के लिए। But he was striving with God. Give me the blessing now. वो प्रभु के साथ लड़ रहा था कि प्रभु मुझे अभी आशीष कर। Amen. आमीन। The last mandate that the Lord was saying to us. आखिरी बात जो परमेश्वर ने हमें बोला है, आज्ञा जो दिया है परमेश्वर ने हमें, Arise. खड़ा होना है। Arise. खड़ा होना है। उठ जाओ.
है ना, हमें खड़ा होना, The जागना church is होगा। called to arise. प्रभु ने हमें बुलाया कलीसिया को ताकि उठने के लिए। Verse 46, Matthew 26, what did Jesus say before going to Calvary? और यीशु मसीह कहता है कलवरी पर जाने से पहले 26 अध्याय मत्ती का 46 में ये कहता है, He says, arise. यीशु कहता है खड़े हो जाओ, Rise. खड़े हो जाओ। Let us be going. कहता Let us be going. आओ चाओ चले चले हम चलते हैं, आओ चले. चलो हम चले। See, my betrayer is at hand. Arise. Let वो us कहता be चलो हम चलते, क्योंकि मेरे कहता पकड़ने वाला निकट आ चुका है। every time you go through a turmoil, a tribulation, a persecution, हर बार जो कहता है दुख तकलीफ पीड़ाओं से अगर आप गुजरते हैं, Jesus is telling you, arise. प्रभु आपसे ये कहता है कि चलो उठ जाओ, खड़े हो जाओ। God is looking for a united church. क्योंकि प्रभु ऐसा कलीसिया को ढूंढता है, ऐसा कलीसिया को देखता है जो कहता है एकता हो। God is looking for a prevailing church. प्रभु ऐसा कलीसिया को चाहता है जो कहता है कि प्रार्थना करने वाला, मध्यस्थी की प्रार्थना करने वाला। God is looking for a glorious church. प्रभु जो के महिमा से भरा हुआ कलीसिया को देखता है। You know what is a church? आप जानते कलीसिया क्या है? It's ecclesia. कलीसिया जो है Ecclesia in the Hebrew language हिब्रू का शब्द है, is a fellowship of saints कहता विश्वासियों का जो संगति है, who are an army of warriors. जो परमेश्वर का कहता है सेना है, जो युद्ध करने वाला सेना। One of the preachers said, we are an army. एक प्रचार ने कहा कि हम परमेश्वर का सेना We है, are an army of warring saints. हम वो आर्मी, वो सेना है जो कहता लड़ने के लिए है। Isaiah 60. आइज़ाया किताब 60 Arise, shine, for your light has कहता है come. कि खड़े हो जाओ, उठो, खड़े हो जाओ, तुम्हारा उजाला आ चुका है। Arise from depression. आप जो कहता डिप्रेशन या निराशा से बाहर निकलो, Arise from weakness. अपने कमजोरी से बाहर निकलो, Arise from your woundings, from your frustrations. आपका निराशापन, हताशा से आप बाहर निकलो, Arise from your dead circumstances. आप मरा हुआ अवस्था से बाहर निकलो, Arise to your new life. नए जीवन के लिए निकलो। Shine. और कहता है कि चमको, Be radiant with joy. कहता है कि आनंद में प्रवेश करो, Be radiant with the glory of God. कहता तैयार होना कि प्रभु की महिमा के लिए, For the light has come. क्योंकि उजाला आ चुका है, The glory of the Lord has risen upon you. कि परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर आ चुका है। There is a latter rain of glory we are waiting for. है Aren't ना, we, कहता church? अंतिम दिन का जो कहता है महिमा के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। Are we waiting for a latter rain? क्या आप अंतिम बारिश के लिए इंतजार कर रहे हैं, अंतिम महिमा के लिए इंतजार कर रहे हैं? I come from a Hindu Punjabi family. मैं जो कहता है हिंदू पंजाबी परिवार से आया हूँ। And when I turned to the Lord, मैंने प्रभु के पास जो अपने जीवन दिया, I started hearing this verse over and over again. और ये वचन में काफी बार सुनते सुनते आया हूँ। The latter rain will be more glorious than the former. ये सुनते आया कि कहता अंतिम बारिश जो कहता है शुरुआत के बारिश से बड़ा होगा। And it took me a long time to understand what is this latter rain. तो मुझे काफी समय लगा कि शब्द को समझने के लिए कि अंतिम दिन का बारिश क्या है। For me to be born again, to have an encounter with Jesus was enough. मेरे लिए जो कहता है दोबारा जन्म होना, प्रभु से मिलना, वो काफी और नहीं चाहिए। And I'm like, what is the latter rain? और जबकि मैंने सुना है कि अंतिम दिन का बारिश के विषय में, मैंने कहा ये क्या है। But after I was born again, जब मैं दोबारा जन्म हुआ, and then being from the only and the first person in my Hindu family to be saved, और सबसे पहला जो मेरा हिंदू परिवार में जो बचाया गया है, I started having persecution. और उसके बाद क्योंकि मैं ही था तो मेरे जीवन में बहुत सारा ताड़ना आने लगा, I started having all the problems. मेरे जीवन में बहुत सारा कहता है समस्या आने लगा। But glory to God, प्रभु की महिमा हो, my dad got saved. मेरा पिताजी को उद्धार My को पाया sister है, got saved. मेरा बहन उद्धार को पाया, Another sister got saved. और दूसरा बहन भी My उद्धार brother पाया, got saved. और भैया भी My छुटकारा mother पाया, got saved. मेरी माँ उद्धार को पाया। And then I understood, तब मुझे समझ में in आया, the midst of persecution, कहता है कि in the तकलीफ के midst of द्वारा trials, और कठिन समय में भी the salvations of souls, उद्धार का जो उद्धार के द्वारा आत्मा का जो उद्धार है, the coming harvest, और जो कहता है फसल जो है, आने वाली कटनी, कटनी या फसल जो है, is the latter glory. ये जो कहता है आने वाला कटनी या जो उद्धार आत्मा बचाया जाता है, You ये have- जो है अंतिम वारिस है। Your small congregation आपका छोटा सा विश्वासी हो सकता है, is your present glory. आप जान लीजिए उस समय आपका उस समय जो है आपके लिए वर्तमान महिमा है। I promise you, मैं आपसे वादा करता हूँ, you can take it in writing from me. और लिखित रूप में लिख लीजिए, Apostle will autograph it. और कहता है लिख लीजिए और अपोस्टल्स में सिग्नेचर करेंगे। Your church is going to grow in Jesus' name. आपका कलीसिया जो है बढ़ता रहेगा, Because it is not yours.
क्योंकि वो आपका नहीं It है, is the Lord's church. क्योंकि ये प्रभु का कलीसिया है। Your congregation is going to be full. आपका आप कहते कलीसिया में लोग भर जाएंगे, You go and pray over your empty seats. और जाकर आपका खाली खाली चेयर के ऊपर में विश्वास के साथ प्रार्थना You कीजिए, pray around your area. और आपका जहां आप रहते उस जगह में एरिया के प्रार्थना कीजिए, You pray night and day. और कहता है दिन रात प्रार्थना कीजिए। In spite of your personal problems. ये कहता है कि जो कि आपका व्यक्ति के जो भी समस्या उसके बावजूद भी When you partner with Jesus, जब यीशु के साथ आप मिलकर करते हैं, the revival will come. रिवाइवल आएगा। Amen. आमीन। You know, in Khasi Hills, I was reading the history. मैं कहता है कि इतिहास को पढ़ रहा था खासी हिल्स के बारे में। The two lady missionaries from Meghalaya, मेघालय से दो बहनें जो मिशनरी के रूप में, they went and heard a message on prayer by Reverend R.A. Torrey. कहता है कि रेवरेंड आरएन टोरी के द्वारा उनके कुछ संदेश को उन्हें मिला है। And then they went back to their place उसके बाद वापस आए, and they started praying. उसके बाद वो प्रार्थना करने लगे। And 3 years later, there was a revival in Cherrapunji. 3 साल के बाद में चेरापूंजी में जो रिवाइवल आया, They had a desperate cry before God. क्योंकि वो बेचैनी के साथ परमेश्वर के आगे पुकारने लगा। The people had a desperate cry. और इसी कारण जरूरत है कहता है बेचैनी के साथ प्रभु के आगे आकर दुआ करना। They said, "Oh Lord, pour down your spirit over उन लोगों us." ने ये प्रार्थना किया, हे पिता परमेश्वर अपने आत्मा को उड़ल दे। They had problems. हाँ, उनके जीवन में बहुत सारा समस्या था, All of them had problems. और सभी के साथ समस्या था, All of them had persecution. सभी के जीवन में ताड़ना है। They kept their problems aside उनका समस्या को अलग करते हुए, because they met with the Son of Man. क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र के साथ मिल चुके थे। And the Son of Man said, परमेश्वर के पुत्र ने कहा, "Arise and watch and कहता है pray." कि खड़े हो जाओ। Do you want to arise right now? क्या आप खड़े होना चाहते हैं? आप Do you want to arise right now? क्या अभी आप खड़े होना चाहते हैं? One prayer that Apostle told us yesterday. एक प्रार्थना जो अपोस्तल ने बोला था कल, What revivalist Evan Roberts prayed. जो एरन रॉबर्ट ने प्रार्थना किया है, He prayed, "Lord, bend me. उसने ये प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे झुका, Lord, bend me." प्रभु मुझे झुका। How many of you want the oil of Jesus this evening? आप में से कितने लोग यीशु मसीह का अभिषेक का तेल अपने जीवन में चाहते हो आज के शाम? If you need the oil of Jesus, अगर आपको यीशु मसीह का अभिषेक का तेल चाहिए, you're free to come forward और आगे की ओर आप आ सकते हैं इस समय, and you can come forward and bend. और आगे आकर परमेश्वर के आगे झुक सकते And हैं। this will be your prayer going away from this place. आपका ये दुआ होने दीजिए, प्रेयर होने दीजिए जगह में, इस जगह को छोड़ के जाने से पहले। Lord, bend me. आप कहिए, प्रभु मुझे झुका। You could be saying, "Lord, pass this cup away from me." शायद आप कह रहे होंगे कि प्रभु ये प्याला मुझसे दूर हटा। And you could be saying, "I can't endure anymore." आप भी शायद ये कहते होंगे कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। But you will start praying this evening. लेकिन आज के शाम को आप प्रार्थना करना चालू करोगे। Lord, not my will, but yours be done. आप कहिए कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा हो। Lord, bend me. प्रभु मुझे झुका। As you come and receive this oil, और जब इस जगह पे आके प्रभु यीशु मसीह का उस अभिषेक का तेल लेते हैं, the glory of God will fall on you. प्रभु की महिमा जो आपके ऊपर उतर आएगा, The fire of God is going to fall over you. पवित्र परमेश्वर का पवित्र आत्मा का आग आपके ऊपर उतरेगा। We cannot be dry Christians. हम जो सूखा मसीह नहीं बन सकते। We have to be oily Christians. हमारे जीवन में कहता है कि तेल होना होगा। We have to be revived Christians. हम जो कहता है कि पूरा कहता है जागरण पाने वाला मसीह होना होगा। You know, when revival took place in Khasi Hills, और जो कि रिवाइवल आया था खासी हिल्स में, there was no order. अगर आप जानते हैं उस जगह में Yet there was an order. कोई ऑर्डर नहीं था, फिर भी How come I come from Hindu family? और जबकि देखिए मैं जो एक हिंदू परिवार से आया हूँ, I have seen people dancing before the idols. मैं देखा कि लोग जो कैसे के मूर्तियों के आगे में नाचते हैं, There's so much disorder. और इतना जब किसी प्रकार का कोई ऑर्डर नहीं था। Yet when I come to a Christian house, फिर भी जब मैं एक मसीह परिवार में आया, people extremely behave themselves कहता है लोग जो कि अद्भुत तरीका से पेश आते हैं, and forget that the house of God is a house of prayer. अब भूल गए कि कहता है परमेश्वर का घर जो है प्रार्थना का घर है। It's a house of encounters. इसी कर मैं कहना चाहता हूँ, ये जो कहता है मिल मिलाप या कहता है मिलने के लिए परमेश्वर से सामना करने वाला घर है। It's a house where we find ourselves in the glory realm. और ऐसा घर है जहाँ पे हम प्रभु की महिमा को पाते हैं। Are you ready to tell the Lord, "Lord, come fall on me"? क्या आप तैयार है कि प्रभु मेरे पीछे हो ले प्रभु If जी? you're ready, feel free to come forward and bow down.
अगर आप आना चाहते हैं परमेश्वर की ओर से उस तेल को पाना चाहते हैं, अभिषेक का तेल पाना चाहते हैं, आप आगे की ओर आइए। You come, you will be revived. आप आइए, आपको आपका जीवन बदल जाएगा, You will be refreshed. आप नया बन जाओगे आप, Because the fire of the Holy Spirit will fall on us. क्योंकि पवित्र आत्मा के आग आपके ऊपर आने वाला है। God is going to touch us. परमेश्वर हमें छूने वाला है। We will have mighty encounters. आपके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक आएगा The Father is here with his mighty angels. और परमेश्वर का स्वर्गीय दूत जो है, And the angelic encounters will happen over your life. आपके जीवन में स्वर्गीय दूतों के द्वारा स्वर्गीय दूत भी होगा। There are some young men इस जगह पे कुछ नौजवान भाई who have been abused as children. आपके बच्चों के द्वारा आपके साथ बुरा बर्ताव किया गया है। No. There are some young men, there are men in this room. और कुछ जवान लोग इस जगह पे हैं। When you were young, when you were a child, you were abused. और आप जो छोटे थे उस समय आपके साथ बुरा बर्ताव हुआ है। Men are going to find big deliverance in Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम से आप विजयी को पाओगे आप। There are women in this room. इस जगह में कुछ बहनें हैं। You have felt helpless. आप बिल्कुल कहता You निसहारा हो have felt चुका है, so weak. आप इतना कमजोर हो चुका But है। God is creating Deborahs and Esthers in this room. और परमेश्वर आपके जीवन में कुछ कर रहा है। You परमेश्वर will go back as mighty women of valor. अब इस जगह से कहता है महान परमेश्वर का शक्तिशाली संतान होकर God जाओगे is आप। going to pour out His Spirit और upon परमेश्वर you. आपका अपना आत्मा उड़ालने वाला है आपके ऊपर। Cry out to God. परमेश्वर को पुकारिए। Let there be a desperate cry, church. आपके जीवन आप ऐसा पुकारो जैसे बेचैनी के साथ Son आप of परमेश्वर को Man is पुकारिए। here. इस जगह पे इतना सामर्थ है। Son of Man is here. परमेश्वर का पुत्र इस जगह पे है। The Son of God is here. अब परमेश्वर का बेटा इस जगह पे है। And He's here with His witnesses. वो हमारे कमजोरी के साथ इस जगह पे है। He's here with अपने गवाहों के साथ मौजूद है। Amen, amen. He's here with His angelic host. और इस जगह पे अपने स्वर्गीय दूतों के साथ है। इस जगह And पे God is going to touch you परमेश्वर आपको छूने वाला है। and going to fill you. परमेश्वर आपको भरने वाला है। Cry out, Holy Spirit, fall on me. अब प्रार्थना कीजिए, रोइए कि प्रभु मेरे पवित्र आत्मा मेरे ऊपर Cry उतारा। out, church. कलीसिया रोइए, प्रभु को He's पुकारिए। seeking a desperate cry. अगर ऐसा बेचैनी के साथ आप पुकारिए प्रभु को। He's asking that people love me again. और प्रभु आपसे कहता है कि लोग मुझसे प्रेम करें फिर से, You had lost your first love. क्योंकि आपने अपना पहला प्रेम को खो दिया है। God is going to pour out His Spirit on you. परमेश्वर आपके ऊपर अपने आत्मा को उड़ालने पर है। The Judah team can come and minister. ये जुदा Yes, मिनिस्ट्री one जगह पे person. आया इस समय। Pour out your Spirit. Yes. Jesus. Come on. Hallelujah. In Jesus' name. Move. In Jesus' name. Papa say, pray in the Spirit, pray in the Spirit. He's here in our midst. और इस जगह परमेश्वर He's का पुत्र touching हमारे us बीच में है। in the darkest places. वो इस जगह पे है। He's here. He's here. वो इस जगह पे है। There's an abuse, a deep abuse over you. शोषण हुआ है आपका. And God is healing you. आप में से कुछ लोगों के साथ में बुरा बर्ताव हुआ है। Jesus. परमेश्वर आपको इस समय चंगाई कर रहा है, छू रहा है परमेश्वर आपको। Jesus is healing you. प्रभु आपको चंगाई कर रहा है। You are a vessel of His glory. आप जो कहता महिमा का बर्तन है आप, That is why you were abused. क्योंकि इसी कारण आपके साथ बुरा बर्ताव हुआ है। You have been rejected. आप ठुकराए गए थे, You have been destroyed. आपको बर्बाद किया गया है। Some of you have tried to commit suicide. I आप में just से break कुछ- that spirit over you right आप में से now. कुछ लोग जो है कहता है आपने अपना आत्महत्या करने के लिए कोशिश किया है। The spirit of death be broken over you in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से कहता है कि मौत जो है आपके जीवन से हट जाए यीशु You के will नाम से। go back with the spirit of life. आपके अंदर में जीवन जीने का आत्मा हो। Break that abuse. अब वो जो आपके साथ बुरा बर्ताव वो हट जाए यीशु के नाम से। You are healed right now. आप इस जगह पे हैं, आप God is wiping your past away. परमेश्वर आपको छू रहा है। Some of you, the enemy has held your neck.
गर्दन पकड़ा हुआ है। आप में से कुछ लोगों का जो कहता है धड़कन को जो है पकड़ा है शैतान शैतान ने। ने आपकी गर्दन पकड़ी हुई है। I just take authority over that and loosen you in Jesus' name. Amen, amen. Yes, yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Be loosened. Be loosened. Daddy, pray for Pastor Tapan. You go and pray over Pastor Tapan. Some of the leaders, you go and pray. Put oil over them. Oh, Baba Baba say.